कौन सा पेज था आपने? पेज पेज नंबर है 38 या 38, ये इंग्लिश बुक में 38 ऐसा कुछ। 49 49 हाँ 48 49. So today we are going to discuss on Moksha Marga Prakasak, written by Pandit Todumalji, and we are on second unit, and we are discussing on Mati and Shruti. Lots of we have discussed so far about Mati and Shruti and its function. As we know that what the knowledge we are having, the knowledge whether about earning money, business, understanding religion, understanding philosophies, understanding common understanding, we can say. It is all the result of Mati and Shruti. So last time we completed about Mati and Shruti. Two types of Shruti. Last time we started to discuss Aksharatmak and Anaksharatmak. So a little we'll discuss just on Shruti. Then we will just jump on Avadhi, Manaparya and Keval Gyan. तो पढ़िए, प्रेरित जी आप पढ़िए श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति फंक कौन सा वाला पढ़ेगा? 48 the dependent functioning of the Shruti Gyan scriptural knowledge. Now where the object has been known by the Mati Gyan. Now that 48 पे now that by which material objects are known distinctly and clearly according to नहीं its नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये तो वो आ गया अपना अवधियो इसके मनापर्य ऊपर ज्ञान है, हो इसके जाएगा ये। इसके ऊपर है थोड़ा, शुद्ध ज्ञान का स्टार्ट हो रहा है। हाँ राइट No, हियर नाउ। dependent functioning of Shrutgyan, scriptural knowledge. Now, whatever object has been known by Matigyan, through its reference, the knowledge by which another object is known is called Shrutgyan. It is of two kinds, Aksharatmak, letter or verbal, and Anaksharatmak, letterless or non-verbal. For example, someone listens to or sees the word jar. That knowledge produced in the person is mati gyan, sensory knowledge. And the knowledge of the object jar arising with its reference call is called shrut gyan, scriptural knowledge. Likewise, other examples are also to be known. This is aksharatmak shrut gyan. Further, knowledge of cold arising through sense of touch is mati gyan. It is reference, the knowledge evolved that this is not beneficial, hence better to run away from here, is Shrut Gyan. Similarly, other examples can also be given. This is Anaksharatmak Shrut Gyan. The one sensed, etc., irrational beings, jivas without mind, possesses Anaksharatmak Shrut Gyan only, and rational beings, jivas with mind, possess both types of Shrut Gyan. So this Shrut Gyan is thus dependent even on Mati Gyan, which itself is dependent in many ways, and its Shrut Gyan is dependent on various other factors also. Hence, it is also to be known as extremely dependent. okay. So we are discussing on the functioning of her knowledge. How do we know about when we see any ghat or pat, it means घड़ा और वस्त्र हम कभी देखते हैं तो कैसे हम उनको जानते हैं. So lots of we have discussed in our previous session about Mati Gyan, how it is just it works. So we just took an example of chasma and colored chasma and without colored chasma, and Todomilji just told over there that as chasma is not jeep, but you are knowing through your eyes, but that is only nimit. फिर यहाँ कह रहे हैं जो मति ज्ञान के द्वारा जो पदार्थ है ना उसके संबंध में जो विशेष जानता है उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं. सो नाउ वॉट एवर ऑब्जेक्ट हैज बीन नॉन बाय मति ज्ञान through its reference the knowledge by which another object is known is called श्रुत ज्ञान. सो श्रुत ज्ञान इज वेरी सिंपल. मति ज्ञान ने बहुत सारा जाना, बहुत सारा इट डजंट मीन कि एक साथ जाना फिर शुद्ध ज्ञान अपना काम करता है. मति एंड शुद्ध ज्ञान दे जस्ट बोथ फंक्शन वेरी फास्ट. यू कैन नॉट जस्ट count the time over there.
परंतु एक डेफिनेशन डिफाइन करेंगे ना, और फिर आपको समझाने के लिए तो कुछ बोलेंगे ना, वो तो ऐसे बोल रहे हैं कि मति ज्ञान ने जो जाना उसको विशेष जानने वाले ज्ञान को हम शुद्ध ज्ञान कहते हैं। और मैनी टाइम्स वी फील दिस शुद्ध ज्ञान। इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि कोई व्यक्ति जा रहा है, फिर हमने उसको देखा, तो व्यक्ति को देखा हमने, फिर हमें ध्यान आया कि अरे ये तो वो व्यक्ति है जिसे मैं कॉलेज में मेरा दोस्त था, या मैं कहीं मीटिंग में मिला था, ऐसे करके हम डिस्कस करते हैं। सो whatever the object has been known by mati gyan, through its reference the knowledge by which another object is known is called शुद्ध ज्ञान। फिर यहाँ शुद्ध ज्ञान को दो प्रकार का कहा है। इट्स रिमार्केबल थिंग एंड यू मस्ट रिमेंबर, अक्षरात्मक एंड अनक्षरात्मक। So what does it mean by aksharatmak and what does it mean by anaksharatmak? So the thing, the knowledge what we just received through only our feeling or our senses, that is called anaksharatmak gyan. And the knowledge which we just received through words, that is called aksharatmak gyan. So aksharatmak gyan, usually just we when we talk about aksharatmak gyan, so we use this aksharatmak gyan in manushya paryay and anaksharatmak as well. But Todomilji clearly here just he referred that those being who are irrational, so they are having only anaksharatmak gyan. तो हमें ठंड लगी, वो फीलिंग हुई ना हमें, तो किसी ने बुलाया नहीं, कुछ कहा नहीं ना, हमने सुना, बट ठंड लगी ना हमें, तो ज्ञान हुआ हमें। सो एक बात पक्की है कि वॉट एवर द नॉलेज वी विल रिसीव ओनली थ्रू आवर सेंसेस, इंद्रिय और मन के द्वारा ही हमें पता चलेगा ना, whether we listen any words by our ears or whether we feel cool and hot waves by our skin. So the knowledge what we receive through mati and shuddh gyan, that will be just received by the nimitt of body और मन, इट मीन सेंसेस एंड मन। तो यहाँ करें कि अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक जो दो ज्ञान होते हैं ना, ये दोनों ज्ञान जो होते हैं, ये दोनों ज्ञान हमें होते हैं। तो हम मैनी मैनी टाइम्स वी एक्सपीरियंस ऑफ दिस ज्ञान, मति and शुद्ध ज्ञान, sorry, अक्षरात्मक and अक्षरात्मक ज्ञान। Pandit ji here just has given an example of ghat and pat. He's stating over there that it is of two kinds, anaksharatmak letter or verbal, and the anaksharatmak letterless or non-verbal. For example, someone listens to us to or sees the word jar. Jar, it means ghada. That knowledge product in the person is a mati gyan, sensitive knowledge, and the knowledge of the object jar arising with its reference called shuddh gyan, scriptural knowledge. Likewise, other example also are to be known. This is a aksharatmak shuddh gyan. So jar, it means ghada. When we listen this word ghada or jar, so we usually just analyze that, okay, ghada, it means a vastu, a thing by which I can just get cold water in any season. And this utensil is very cheap and very useful, and useful in terms of health. Uh, Basically, it is just a product from India. So when we just listen about घड़ा, घट, तो हमें उसके संबंध में पहले घट मति ज्ञान हुआ, फिर वो डिटेल जो उसके संबंध में हमें आता है वो अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान कहलाता है। वो कि भी घड़ा सुना हमने, तो घड़ा कैसा होता है, कि घड़ा लाल कलर का भी पाया जाता है, फिर काला भी पाया जाता है, तो ऐसे करके हम लोग घड़े के बारे में प्रश्न है यहाँ पे, हाँ just to understand and just to clarify that I understood you correctly. So when we hear the word jar, the knowledge that occurred about the sound jar, कि ऐसा sound आया है jar करके ऐसा, that is amati ज्ञान, right? Or and then the picture arising in our mind, यो ऐसा होता है jar, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, that is a श्रुत ज्ञान, right? Oh sorry, मति so हाँ वो श्रुत ज्ञान है। हाँ, बराबर, एकदम सही है। Okay. अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिए कि जैसे जार वर्ड इज अ इंग्लिश वर्ड, घड़ा वर्ड इज अ हिंदी वर्ड, एंड इफ देयर इज अ पर्सन हु डजंट नो इवन इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल, दोनों ही भाषाओं को नहीं जानता वो, तो उसे वो एक्चुअली में शब्द जो है ना, शब्द नहीं है वो शुद्ध ज्ञान। अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान, इट डजंट मीन दैट दैट वर्ड इज हैविंग दैट काइंड ऑफ नॉलेज, but we are having that kind of knowledge, then when we listen any word, so we are having vocabulary of that word and we know the meaning of that word,
then it will be called that you are just having a aksharatmak Shuddh Gyan. So it is just noticeable thing what I have just told you here. I mean, it's a very interesting, and we can really see them as a different knowledge because, like, say, for example, jar can also be said in Hindi or in English, but the picture or people who understand the words, the picture, the meaning will pretty much arise the same, right? That jar is jar, right? Like if you say hello in Spanish, hello can be said hola, but people who hears a word and understand exactly the same meaning will come to the mind. So they are Yeah, distinct knowledge. Their words are different. jar is a yeah, jar is a word in Sanskrit. If you just talk about the meaning of Sanskrit, so what does it mean? The jar meaning, a male prostitute, a person who is bad, a playboy, a person who is having sexual relations with many women. That is called jar in Sanskrit. So a one word may have different meaning, and in our just when you just in India, you studied a famous Hindi chant, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय जा पाए बोरात नर जा खाए बोरात. So it is in Braj, and I think written by Tulsidas ji. So it is very famous. There is a one kind of alankar. It is called Anupras alankar. So Anupras alankar, what does it mean? One word is having a different meaning on different places. That is called Anupras alankar. So kanak kanak. There is a word, one word kanak and kanak. So kanak it means dhatura, जो एक इंटॉक्सिकेटेड पदार्थ होता है, वो धतूरा. आपके यहाँ चलता है नहीं पता नहीं, यहाँ इंडिया में पाया जाता है, पेड़ होता है धतूरे का. तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं. वो तो एक कनक मतलब धतूरा, एक कनक का मतलब होता है पैसा, सोना. कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, कि धतूरे से ज्यादा नशा तो ना उस दूसरे कनक मतलब सोने में होता है. एक धतूरा खा के भी आदमी बोरा है मतलब पागल हो जाता है, घमंड उसके माथे पे चढ़ जाता है. घमंड मतलब वो पगला जाता है. और सोना मतलब धन जिसके पास अधिक मात्रा में आ जाए ना, वो भी पगला जाता है. मतलब वो भी घमंड के मान पर शिखर पर चढ़ जाता है और वैसी बातें करता है. तो इसे कहते हैं तो विक्षिप्त हो गया, थोड़ा सा पैसा इसने क्या कमा लिया. ही हैज बीन वेरी एरोगेंट एंड जस्ट ही हैज लॉस्ट हिज मॉडेस्टी. तो वो शुद्ध ज्ञान भी जो है ना, जो पहले से हमारे पास वोकेबुलरी है, वो छंद जैसे मुझे समझ में आता था, देन आई कैन एंजॉय एंड आई कैन टेल यू द मीनिंग. बट आप लोगों ने अभी पहली बार सुना कनक कनक ने 100 गुनी मादकता अधिकाय, तो वो नहीं आएगा समझ में. तो श्रुत ज्ञान में अक्षरात्मक में स्पेशली बोल रहा हूँ मैं. अनक्षरात्मक तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि इट विल बी अप्लाइड ऑन ऑल ह्यूमन बीइंग एज अ सेम. मतलब ठंडी हवा लगेगी तो सबको ही ठंडी हवा का एहसास होगा, गर्म लगेगी तो सबको ही गर्म हवा का एहसास होगा. तो अक्षरात्मक की बात हो रही है हमारी, कि देयर इज अ मैनी मीनिंग ऑफ अ वन वर्ड, एंड आपका शुद्ध ज्ञान उस समय कौन सा मीनिंग लेता है. बहुत सी बार हम ऐसा कंफ्यूजन भी हो जाती है हमें ऐसी, कि वो वर्ड उसने कुछ और बोला और हमने किसी और कॉन्टेक्स्ट में ले लिया. सपोज डेट हमें किसी ने बधाइयां दी, अब तो तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो, बधाइयां. तो उसने तो एक्चुअल में हमें बोला कि भाई तुम बड़े आदमी बन गए हो, आपको बधाइयां, लेकिन हमने अपने शुद्ध ज्ञान से लिया कि ही इज कमेंटिंग ऑन मी. तो हमने उसे माइंड कर लिया, हमने बुरा मान लिया. तो जो अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है, अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान, वो घट हमने सुना, कनक शब्द हमने सुना. मतलब आप लोगों ने पता नहीं हिंदी या गुजराती में उस समय अलंकार पढ़े कि नहीं पढ़े. कभी मौका मिले तो आप लोग अलंकार पढ़िए. अलंकार अलंकार का मतलब होता है कि जैसे एक स्त्री, मतलब भारतीय स्त्री सोने के आभूषण पहनने पर शोभा को प्राप्त होती है, साहित्य का उदाहरण है. उसी तरह से कोई भी भाषा हो, वो जैसे स्त्री आभूषण पहनने से अत्यधिक शोभा को प्राप्त होने लगती है, इसी तरह से कोई भी भाषा हो, वो अलंकारों के कारण से अत्यधिक शोभा को प्राप्त होती है. लेकिन वो अलंकार का ज्ञान होना चाहिए, तो वो हमें समझ में आएंगे. तो ऐसे ही यहाँ जो अक्षरात्मक ज्ञान की बात हो रही है, मनुष्यों का व्यवहार है मेनली. अक्षरात्मक ज्ञान हमारे मनुष्यों का व्यवहार है. अब जानवरों की कोई भाषा होती होगी, दैट वी डोंट नो in which language they communicate with each other. As per my knowledge, they are having no language, क्योंकि लैंग्वेज का व्यवहार तो हम मनुष्यों में है. और नारकियों का भी नहीं सुना, तिरंजियों का भी नहीं सुना.
स्वर्ग का सुना है, दैववाणी होती है। दैववाणी कौन सी होती है, कौन से वर्ड्स होते हैं, वो मैंने पढ़ने में भी नहीं आया, मुझे पता भी नहीं। सो वी आर स्पेशली टॉकिंग अबाउट अक्षरात्मक ज्ञान एंड इन रेफरेंस ऑफ ओनली ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बींग्स। तो मनुष्यों के लिए अक्षरात्मक जो ज्ञान है, तो शुद्ध ज्ञान जो होता है अक्षरात्मक ज्ञान है। अब इस ज्ञान का कितना पावर होता है, यू विल आपको रियलाइज याद कि है कुछ और तत्व। एग्जांपल्स जैसे ले सकते हैं, जैसे अलग अलग शब्द होते हैं, कुछ ऐसे समानार्थी शब्द होते हैं, सिनोनिम्स. सो द वर्ड मे बी प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली, सो इन दैट केस मति ज्ञान विल बी डिफरेंट, बट इवन देन द श्रुत ज्ञान विल बी एग्जैक्टली द सेम बिकॉज दे आर समानार्थी शब्द, राइट? सो इस तरीके से भी पता चलता है दैट दे आर डिफरेंट नॉलेज, मति ज्ञान एंड श्रुत श्रुत ज्ञान. हाँ बिल्कुल बराबर है। आपको पता है तत्वा सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है, सत्यानुव्रत की जब चर्चा करते हैं तो वो ऐसा कर रहे हैं कि साहब अपन जो जो केवल जो वस्तु जैसी देखी सुनी जानी है उसको वैसा ना कहना तो झूठ है ही, लेकिन साथ में वो कह रहे हैं कि किसी का मन दुखाना, किसी को कर्कश वचन बोलना, मतलब कठोर वचन बोलना, वो भी असत्य की कैटेगरी में आता है। फिर फर्दर टीकाकार ने उसको डिटेल किया है कि साहब कर्कश वचन मतलब क्या होते हैं। तो वो साहब वो जो वचन होते हैं ना, जिसे हम अक्षरात्मक ज्ञान कह रहे हैं, अक्षरात्मक मत्ती अनुश्रुत ज्ञान कह रहे हैं, बोले वो कर्कश वचन, वचनों से लोगों को हृदय गति रुक जाए, हड्डियां गल जाएं, वो बेहोश हो जाए। मतलब आप सोचो कि कोई उसमें जहर इंजेक्ट नहीं किया गया, उस पर हैमरिंग नहीं की गई, कोई नाइफ यूज नहीं किया, केवल अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान से उसको हृदय गति रुक गई, अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान से उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, हड्डियां गल जाए ऐसा हो गया, वो डिप्रेशन में आ गया। वो सोचो आप, अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान से वो डिप्रेशन में आ गया वो। तो ये जो शब्द है ना, शब्द बड़े पावरफुल हैं। ये जो मति शुद्ध ज्ञान, अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है, स्पेशली हमारी मनुष्य गति की बात हो रही है, तो बहुत पावरफुल है। वो है ना कि आ, वचन संहार के बोलिए, वचन के हाथ ना पाओ, एक वचन औषधि करें और एक करें घाव। तो ये वो अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान की बात है कि हमें जब भी हम whenever we just use word, we must be very polite and use good words for others. क्योंकि एक जो वर्ड्स होते हैं वो दे लाइक दे वर्क लाइक जस्ट मेडिसिन, and another word if you just use abusive words, so they will be like just will harm to you. तो यहाँ कह रहे हैं कि अक्षरात्मक जो शुद्ध ज्ञान है वो अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान। अच्छा, अब ऐसा है कि अगर किसी को भाषा आती नहीं तो आप उसे कितनी भी गालियां दे लो उससे क्या होने वाला है। तो हमने जो डिस्कस किया था ना कि मतलब और कैसा कहा सुनिए, मतलब मैं तो साहित्य काफी रुचि है ना पढ़ने में, संस्कृत साहित्य है जैसे। तो संस्कृत साहित्य आप लोग पढ़ेंगे तो संस्कृत साहित्य में रोमांटिसिज्म का भी बहुत अच्छा वर्णन दिया है, जहाँ काफी सारी वैरायटी दी है संस्कृत साहित्य में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जैन संस्कृत साहित्य, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल संस्कृत साहित्य. So there are many good poet and just writer in Sanskrit, just like Mahakavi Ban Bhatt. Ban Bhatt is a very big name, and he was a scholar of Sanskrit out of imagination. We cannot imagine what type of knowledge he was having that time. Kalidas, Kalidas, Mahakavi Ban Bhatt. There are many names in Sanskrit. तो उनने जो शब्दावली वहां प्रेरित जी यूज की है, आप शब्दावली पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा बीमार आदमी सही हो गया, पता है। Even if someone just recite in front of you and explain the meaning of those छंद और संस्कृत लिटरेचर, तो वो बीमारी ठीक हो जाए। और मेरे ख्याल से शायद स्पीच थेरेपी भी होती है, मतलब अच्छे शब्दों से संगीत थेरेपी होती है, म्यूजिक थेरेपी होती है बीमारों को सही कराने के लिए। प्रतीक जी होती है ना म्यूजिक थेरेपी, ये वर्ड्स की थेरेपी होती है क्या? मैंने जस्ट सुना है, मैंने अभी डिटेल में कहीं नहीं पढ़ा उसको। तो ये जो अपना अक्षरात्मक जो ज्ञान है, ये अक्षरात्मक ज्ञान बड़ा पावरफुल है। मतलब ये परिवार में फूट डाल दे, परिवार बना दे, देश में फूट डाल दे, देश बना दे, समाज में फूट डाल दे, समाज बना दे। तो इसीलिए जिनवाणी में कहा है कि हमें अपने वचन हित मित और प्रिय बोलना चाहिए। टोडमल जी ने भी जो श्रोता के स्वरूप में कहा था ना कि प्रश्न पूछना हो, श्रोता को प्रश्न पूछना हो तो विनम्र होकर प्रश्न पूछे। मतलब अगर कभी कभी ये हो सकता है कि श्रोता को वक्ता से ज्यादा आता हो, उस मैटर में, स्पेसिफिक मैटर में श्रोता को वक्ता से ज्यादा आता हो, तो विनम्रता पूर्वक बताए कि इस बारे में मुझे ऐसा ज्ञान है, आपने ऐसा कहा, तो ऐसा है क्या। तो
अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान में हम लोग एक विनम्रता का ले सकते हैं। जैसे आप हमारे शब्दों का जो अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है, ऑलवेज वी मस्ट यूज गुड वर्ड्स। ये कोई एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, हमारी फैमिली में भी हम वैसे ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, समाज में भी करें, देश में भी करें। तो जैसे वो स्वामी विवेकानंद का तो आपको पता ही है ना, वो स्वामी विवेकानंद जब पहली बार यूएस गए थे, वो वर्ल्ड रिलीजन सम्मेलन में, तो उन्होंने कहा था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो भाई भारत में तो सब लोग आपको पता ही है, अपन भाई बहन ही बोलते एक दूसरे को। हैं? तो वो उन्होंने तो कोई नई बात बोली नहीं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ये शब्द पता ही नहीं था कि ये शब्द कुछ होता है। उनको तो मिस्टर एंड मिसेस, मिस्टर एंड मिस यही पता था उनको। तो उनने वो शब्द बोला, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो वो तो इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ गया कि भाई उनने अपनी पहली जो शिकागो में स्पीच हुई थी, उनने वहां ये शब्द बोला था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो शब्द की अक्षरात्मक ज्ञान की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अक्षरात्मक ज्ञान जो होता है वो मति ज्ञान ग्रहण करता है, और ये अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान की पावर हमारे पास ही है। हम उस अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान को वी कैन जस्ट ट्रांसफॉर्म इनटू राइटिंग्स, into speeches, into voiceover, into just music, in movies. So we can just use in multi-function type of uses of this अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान। सौरभ कुंजन जी, जी आपने सो हाथ दिस, उठाया था। हाँ सौरभ जी, मैं ये पूछ रहा था कि सैनी पंचेंद्रियों को हम अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान ऐसे मानेंगे, ऐसा ऐसा मानना ठीक होगा कि नहीं? बिल्कुल सही है, बराबर माना आपने। और मैं ये जानना चाहता था कि फिर नरक गति और देव गति में भी वो होगा, सिर्फ उसका संयुक्षम कम होगा, नहीं तो मतलब वाणी और वे सब लिखी जाएगी कि नहीं लिखी जाएगी, और उसे कैसे मतलब पास ऑन होगी? नहीं नहीं, क्षयुत्सम कोई कम नहीं, नरक गति में भी क्षयुत्सम हम जैसा ही है। दे कैन फील एवरीथिंग, दे नो एवरीथिंग, यू नो, इवन दे आर थिंकिंग। अब आई डोंट नो इन विच लैंग्वेज दे आर थिंकिंग, what I have done in my previous life, that the results that I am here and suffering so hellish the sorrows over here, वो क्या मतलब किस भाषा में सोचता है डोंट नो। लेकिन वो क्षयुत्सम ज्ञान उनका हम जैसे ही है। हमें जो उंगली काटने पे दर्द होगा उनको भी होगा, बस इतना उनका अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है। और भाषा का कौन सी भाषा है वो मैंने पढ़ने में नहीं आई अभी तक तो, और शायद है भी नहीं। तो अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है, क्योंकि वहां कोई नाम तो है नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई ग्रामर नहीं, कुछ नहीं। तो ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता अक्षरात्मक अनक्षरात्मक से, ज्ञान तो वही फील हो रहा है। लेकिन हाँ, वेदना है और कोई मंद बुद्धि नहीं है। नरक में तो पूरी जैसी हमारी बुद्धि है वैसी उनकी बुद्धि है। त्रियंचों का भी आपको पता ही, संगीत त्रियंच जो होते हैं, संगीत त्रियंच, हाथी है, शेर है, ये लोग कैसे ट्रेनिंग लेते हैं। तो जब हम लोग देखते हैं सर्कस में कोई कोई किसी ने हाथी को ट्रेन किया, किसी ने शेर को ट्रेन किया, तो कैसे करते हैं, वो तो नाम से बुलाओ तो आ जाते हैं वो। तो उनको उतनी भाषा सौरभ जी, सिखा दी गई तो उनको अक्षरात्मक ज्ञान हो गया। हाँ। सर जी, तो इसको ऐसे समझे कि जैसे, तो यहाँ पे भावो मतलब इंटेंशन से होता है, मतलब जैसे देव गति में भी भगवान की और उनकी पूजा स्तवना आदि होते होंगे, लेकिन भावों से होगा, सच्ची में अक्षर से मैसेज ऐसे नहीं करेगा, लेकिन वो शुद्ध ज्ञान का ही एक फॉर्म होगा, ऐसे मान सकते हैं क्या? नहीं नहीं, करते हैं नहीं, वो। शुद्ध ज्ञान ही है वो, शुद्ध ज्ञान है। और वहां उनको भाषा होती, देव भाषा होती है। मतलब संस्कृत को देव भाषा भाषा कहा जाता है। लेकिन देवों की भाषा होती है, वो हम्म, कौन सी होती मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, होती है। ओके। भक्तांबर स्तोत्र में वो दूसरे ही छंद में आया है कि जो देवों ने, इंद्र ने, जो समस्त मति श्रुत 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 ज्ञान से परिपूर्ण हुए, उन्होंने जो स्तोत्रों की रचना की है, ऐसा ऐसा वहां पे भक्तामर स्तोत्रों में भी आया है। जैसे वो लोग भी स्तोत्र की रचना करते हैं, देव लोग भी। राइट। हाँ, तो वो ये हो सकता है ना, उनमें पावर्स होती है, वो संस्कृत भी जान सकते हैं, वो कन्नड़ भी जान सकते हैं, गुजराती भी जान सकते हैं, हिंदी भी जान सकते हैं। उनमें ऐसी पावर्स है। तो मतलब उनमें कैपेसिटी है अक्षरात्मक अनक्षरात्मक दोनों की। नारकियों में भी है, त्रियंचों में भी है, अगर उसको सिखा दी जाए अक्षरात्मक। लेकिन अनक्षरात्मक का इन्होंने बताया कि अनक्षरात्मक तो जो आपके एक इंद्रिय संगी जीव है ना, उनको तो अक्षरात्मक अनक्षरात्मक ही होगा, उनको अक्षरात्मक हो ही नहीं सकता है।
मन और इंद्रिय सहित जो संगी हैं, भले ही वो त्रियंच हो, देव हो, नारकी हो, मनुष्य हो, वो दोनों समझ सकते हैं अक्षरात्मक है अनक्षरात्मक। सर जी एक प्रश्न है यहाँ पे तो फिर, हाँ हाँ। कि नॉर्मली वी से दैट जो जीव निगोद में है, एक इंद्रिय है, उनको बहुत बहुत दुख है, अनंत दुख है, यानी बहुत बहुत सारा दुख है, इवन फार मोर देन एनी संगनी पंचेंद्रिय जीव. सो इन लोगों, they have only one sense, right? And even that sense is shared among so many of the jivas. तो एक ही इंद्रिय है तो इतना ज्ञान ही कम है. अगर मति ज्ञान ही इतना कम है, यहाँ पे आता है जैसे मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान भी मति ज्ञान पे डिपेंडेंट है. So they already don't have that many senses. Plus, even when they have a senses, one sense, it's also very less kshayaksham. So they already don't know much. So then why would उनको अनंत दुख क्यों होगा, इतना दुखी क्यों होंगे? जिनको ज्यादा इंद्रिय है, जिनको ठंडी लगती है, गर्मी भी लगती है, जिनको देखने में भी कुछ आता है, कोई मुझे डरा रहा है, कुछ सुनने में भी आता है, तो वो ज्यादा दुखी होना चाहिए ना. ऐसा क्यों बोलते कि निगोदिया जी ज्यादा दुखी है सबसे ज्यादा? हाँ हाँ, देखिए बढ़िया प्रश्न पूछा ये प्रेरक जी ने, कि निगोदिया की तो एक इंद्रिय है तो उसे क्या दुख है। तो अभी शायद चौथे अधिकार में पंडित जी बोलेंगे टोटल जी। तो साहब वो अजीब थोड़ी हो गए, वो तो जीव ही है। निगोदिया को भले ही अक्षर के अनंत में भाग बराबर ज्ञान है, लेकिन दुख की जो फीलिंग है वो तो है ही। हाँ, अब ये एक अलग बात है कि हम उसे डिफाइन नहीं कर पा रहे, लेकिन सर्वज्ञ देव के ज्ञान में उनकी वेदना है। कैसी? जैसे साहब एक तो चार इंद्रियां नहीं है उनकी, तो वो भी वेदना है उनको, तो ज्ञान रहित नहीं हुए हैं। अब वो ज्ञान को, मति और शुद्ध ज्ञान कैसे उनको प्रोसेस होता है, किस रूप में वेदना में जानते हैं, वेदना तो उनको है क्योंकि सर्वज्ञ देव की वाणी में आई है। तो भले ही हम लोग उसको डिफाइन ना कर पाए, क्योंकि वो वेदना को एनालाइज करना सूक्ष्म ज्ञान का काम है। तो हम तो इतना कह सकते हैं कि साहब अनंत वेदना में है वो, और वहां जैसी वेदना कहीं नहीं है। तो अजीब नहीं हो गए, वो है तो जीव है, अनंत वेदना में है, ये भी सही बात है। अब वो क्या सोचते होंगे, क्या जानते होंगे, कब छूटू यहाँ से, तो संगी तो है नहीं, तो इतना तो विचार करते नहीं होंगे, लेकिन दुख का उनको वेदन होता है, ये जरूर अपन कह सकते हैं। जनवाणी के आधार से भी कह सकते हैं, और हमें भी दिखता है सामने सामने कि मगर चार सर, इंद्रिय नहीं होती उसका भी दुख जो है। जो इंद्रिय वेदना है वो तो उनको कम है, क्योंकि इंद्रिय ही इतनी कम है और क्षयक्षम भी कम है. और इसी कारण से हमें वेजिटेरियन होने के लिए कहा गया है ना, कि आप प्लांट्स लो, बिकॉज प्लांट्स से समनी पंचेंद्रिय को ज्यादा दुख होगा अगर हम उसको काट के खा के खाएंगे, मारेंगे तो. और प्लांट्स को उनकी कंपैरिजन में कम दुख होता है. तो इंद्रिय वेदना तो वहां पे कम है ना, पर फिर भी इंद्रिय वेदना कम होने के बाद भी इन जनरल दुख वहां पे ज्यादा है, ऐसा ऐसा कह सकते हैं. हाँ है ना, दुख तो देखो चार इंद्रिय नहीं है, एक तो वो दुख है, और उनको एक ही इंद्रिय है। अब उनका पूरा दुख ना कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। हम तो ऐसे लगाएं कि जो दुख पांच इंद्रिय से होना था, वो उनको एक ही इंद्रिय से पूरा दुख हो गया उनको। नहीं मगर तो सरोज जी, दुख तो है। अगर अगर ऐसा माने कि उनको ज्यादा दुख है पंचेंद्रिय से, तो हम तो फिर ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि वेजिटेरियन की जगह नॉन वेज होना चाहिए, क्योंकि पंचेंद्रिय को कम दुख होगा अगर वो उसको मार के काट के खाएंगे. नहीं नहीं नहीं, ये देखिए अपन वहां ऐसा नहीं जोड़े। जैसे अपन जो वेजिटेरियन की बात करते हैं ना, तो वो तो अपना टाइम देके खुद ही, जैसे फल है पक जाते हैं, फसल है गेहूं की पक जाती है अपने आप, वो तो उनका लाइफ ही उतनी होती है। सेकंड थिंग, हम जो अभी बात कर रहे हैं ज्ञान की, और वहां वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में हम बात करते हैं पदार्थ की, कि भाई वो पंचेंद्रिय के द्वारा जो पदार्थ है वो अभक्ष है, क्योंकि घृणित है, उसमें निरंतर जीव पैदा होते रहते हैं, और उसमें हिंसा भी होती है। अब अपन कहें कि अच्छा तो फिर मतलब हम ये एक इंद्रिय जीवों को मारते जाएं तो फिर कोई पाप नहीं लगेगा। तो उसके लिए अपन ने पढ़ा है कि सब चार प्रकार की हिंसा होती है, आरंभी, उद्योगी। तो ये हमारी आरंभी हिंसा में आ रहा है। हिंसा तो है वो, हिंसा हाँ नहीं है मगर ऐसा सरोज नहीं जी, है। ऐसा कहा जाता है ना कि पंचेंद्रिय को मारने की अपेक्षा एक इंद्रिय की में करने में हिंसा कम है उतनी. यानी पंचेंद्रिय को बराबर मारने है, में ज्यादा हिंसा है, ऐसा कहा जाता है सामान्य तरीके से. तो बराबर ये है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पंचेंद्रिय को इंद्रिय ज्यादा होने की वजह से और क्षयक्षम भी ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा दुख होता है. इसी वजह से हमारे भाव भी इतने ज्यादा कलुषित होते हैं, तो ज्यादा हिंसा वहाँ वहाँ कही जाती है. वो हिंसा करने में ज्यादा पाप, इतनी तीव्रता होनी चाहिए वो भाव की. और एक इंद्रिय में वो, एक तो क्षयक्षम कम है और इंद्रिय भी कम है, तो वो उनको इतना दुख नहीं होता है, वैसा वहां कहा जाता है. मुझे लग रहा है यहाँ पे डिस्टिंक्शन है इंद्रिय
दुख देखे, इंद्रिय वेदना, वेदना का है, तो वो एक इंद्रिय को कम है, परंतु जो इन जनरल दुख की मात्रा है वो बहुत ज्यादा है वहां पे। इंद्रिय वेदना कम होने के बावजूद दुख की मात्रा ज्यादा है, ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है। अब दुख अपन कैसे भी कह लें, दुख तो उनको है। अब हाँ अपन ये दुख है, कहें कि वो वैसे हम तो एक्सप्लेन नहीं कर इंद्रिय सकते। इंद्रिय माध्यम है दुख का। हाँ और ऐसा मैंने, भी कहा है, छैडाला पढ़े थे ना अपन ने, क्या कहा था कि वो उनका दुख कहा ही नहीं जा सकता। हाँ मतलब यानी प्रकट वो नहीं कर इतना सकते दुख वो होता लोग। है कि कहा ही नहीं जा सकता। हाँ, प्रकट नहीं कर सकते वो लोग, हाँ, अगर दुख वो है। वर्णन मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। और वो कहते हैं ना कि जैसे अपन किसी से बात करो तो अपन किसी से पूछो कैसे हो, तो वो इतना बोलता है, आई कैन नॉट टेल यू इन वर्ड्स हाउ आई एम सफरिंग इन माई लाइफ, बस इतना बोलता है। तो बोले बताओ, तो वो मैं नहीं बता सकता, बस आई कैन फील। तो जैसे वो कोमा में ऐसा ही है। चला गया कोई व्यक्ति और कोमा में सफरिंग हो रहा है उसको, तो वो बता नहीं सकता, परंतु सफरिंग तो वहां पे हो ही रहा है, तो उस तरीके से। हाँ है ना, पूरी वेदना में तो है, वो वेदना में है वो बराबर। और कोमा में तो सब जानते ही, अपन ने अपन सुनते भी हैं कि वो सब सुनते हैं करते हैं। क्योंकि कोमा से बाहर आने के बाद भूल जाते हैं वो। बहुत कम लोग आते हैं लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन उनको वेदना तो होती है, किसी किसी को याद भी रहता है। हाँ, तो बढ़िया। एक अच्छा पॉइंट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, अक्षरात्मक ज्ञान का, अनक्षरात्मक ज्ञान का। तो अक्षरात्मक और अक्षरात्मक में मुझे आपको बताना है, वो आप ये समझिए कि अक्षरात्मक ज्ञान जो है ना हमारा स्पेशल, हम अभी मनुष्यों की बात कर रहे हैं, तो हमारी ये स्पेशल फैसिलिटी हमारे पास है कि हम लोग शब्दावली का प्रयोग करते हैं। और हमारी पूरी जो जिनवाणी है ना, वो शब्द शुद्ध ज्ञान है ना। तो मनुष्य गति में प्रबल संभावना क्यों होगी? क्योंकि यहाँ शब्द शुद्ध ज्ञान है ना यहाँ। और शब्द शुद्ध ज्ञान के साथ साथ में उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं हम। जैसे हमने पढ़ा कि साहब, मुनि बनने का जो सौभाग्य है वो केवल मनुष्यों को मिलता है, वो संयम की उत्कृष्ट अवस्था मनुष्य गति में ही हो सकती है। तो हमने ये शब्दात्मक अक्षरात्मक ज्ञान पढ़ा, एंड वी आर कैपेबल टू इम्प्लीमेंट दैट इन आवर लाइफ। We can be saint, we can have just brahmacharya breath, we can have samyak darshan, we can just follow ekasan, upavas, ansan, avmodati, etc. These kind of stuff we can just follow. तो एक हमारे पास मनुष्य गति में अक्षरात्मक ज्ञान की, हम स्पेशली वे टॉकिंग अबाउट अक्षरात्मक ज्ञान। तो अक्षरात्मक ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए कहा जाता है कि जो अ पर्सन हु इज एन एडुकेटेड, जो जो शिक्षित आदमी है, उससे ही बात करना योग्य है, अशिक्षित से नहीं। क्यों? क्योंकि ही नोज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ही नो द ब्यूटी ऑफ मीनिंग वर्ड्स, एंड ही नोज गुड एंड बैड थिंग्स। ही कैन डिस्क्रिमिनेट the thing which is in his favor and the thing which is in his against। तो वो कर सकता है। इसलिए पढ़े लिखे की वैल्यू होती है। और हम देखते भी हैं दुनिया में जितने लोग हैं, whether you are doing job in your company and just getting good reward against that, कोई भी भारत के प्रधानमंत्री हो या फिर कोई भी बड़े पद पे हो, सो दे ऑल आर जस्ट हैविंग अक्षरात्मक ज्ञान रिसीव्ड फ्रॉम बुक। तो कभी किसी कोई जानवर को किसी बड़े पद पे नहीं बिठाला जाता है, वो इंसान को ही बिठाला जाएगा, एंड वो उस चीज के स्पेशलिस्ट हो, उस चीज के बारे में जाने। अक्षरात्मक ज्ञान, तो मति शुद्ध ज्ञान अक्षरात्मक ज्ञान को ग्रहण करता है, सुनता है, लैंग्वेज सीखता है, समझता है, बोलता है, और उसके द्वारा जानता भी है। तो ये सारी चीजें जो है, तो मैं संस्कृत साहित्य का एग्जाम्पल दिया था कि संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, मतलब मैं बेसिकली आई एम स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लेकिन हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य मेरा बहुत बड़ा प्रिय है। क्योंकि उसमें जो शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, कितने शायद 9 खरब शब्द बताए थे संस्कृत में, इतने शब्द बन सकते हैं उसमें। तो बहुत शब्दावली बहुत विशाल है उसकी। तो वो सुन के अच्छा लगता है। अपन बीमार हो तो सही हो जाते हैं वो सुन के। और जैसे जो होता है ना, कभी युद्ध होता है तो उन सैनिकों को ना देशभक्ति की कविताएं और गाने सुनाए जाते हैं। तो वो इतने मोटिवेट हो जाते हैं, इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि वो सामने वाली सेना को हरा देते हैं उस अक्षरात्मक ज्ञान से, है ना। और ऐसे ही हमें किसी की बात कड़वी लग गई, तो हमने काफी सारे एग्जाम्पल देखे हैं कि उनको कड़वी लग गई। जैसे तुलसीदास जी थे, तो तुलसीदास जी की मैंने आपको स्टोरी बताई रखी है कि तुलसीदास जी की जो पत्नी थी ना, तो सी वॉज क्वाइट ब्यूटीफुल, और तुलसीदास जी उनमें बहुत लट्टू थे। तो वो मायके गई तो वहां भी पीछे पहुंच गए, तो उन्हें गुस्से में कह दिया कि भाई, यू आर जस्ट फॉलोइंग मी, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग मी यू मस्ट फॉलो राम। देन
for your kalyan, you can just meditate of Ram and follow Ram in spite of me. बताओ, उनने तो गुस्से में कह दिया, लेकिन उनको चुभ गई बात। यार ये तो सही कहा यार, मैं तो क्षणिक देह के पीछे पड़ा हूँ मैं। बन गए वो तो, आज तुलसीदास जी का नाम पूरा वर्ल्ड जानता है कि भाई ही वाज अ फेमस राइटर, पोएट एंड द फेमस स्कॉलर ऑफ दैट टाइम हु हैज रिटन रामायण। तो यही है, अक्षरात्मक ज्ञान जो है बड़ा कमाल का है, और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से यूज करते हैं, कैसे करते हैं। तो इसमें जो दिया है, किसी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछते जाइए, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक है, हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे। jar arising with this reference is called Shrut Likewise, other example also are to be known. This is an Aksharatmak Shrut For the knowledge of the cold arising through the senses of the touch is Mati Gyan, which is with its reference, the knowledge evolved that this is not beneficial, hence better to run away from here. It is Shrut Similarly, other examples can also be given. This is a अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान। सो अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान का उन्होंने क्या एग्जांपल दिया कि सपोज दैट समवन इज जस्ट फीलिंग कोल्ड बाय जस्ट अ सेंस, तो उसे समझ में आए कि भाई यहाँ से चले जाओ, अच्छा नहीं है ये, मतलब सर्दी लग जाएगी वहां, चलो यहाँ से, जैसे अभी सर्दियां आ रही हैं तो आपके यहाँ वो होती है, क्या नाम से, स्नोफॉल होती है। तो स्नोफॉल में पहले से आने लगता है रेडियो पे, अपने न्यूज में, सब जगह की भाई it is forecasting that within 2 hours or 3 hours there will be heavy rainfall and the people they just go inside their home। तो हम नहीं सुनते हैं, बिल्कुल नहीं सुनते हैं हम। लेकिन जैसे ही वो स्नोफॉल होना चालू हुई और हमारे शरीर में वो बर्फ लगना चालू हुई, तो हमारा सेंस बोलने लगता है कि भाई मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं बॉडी की कि मैं इसको बहुत देर तक सहन कर पाऊं। तो जैसे ही उसे बर्फ टच हुई बॉडी से उसकी और उसे बहुत ठंड लगी, तो भाग जाता है वो कि भैया चलो अपनी गाड़ी में बैठा हो, वो घर पहुंच जाता है। तो ये अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान बोलते हैं कि भाई ये अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है। कभी घोषणा नहीं भी हो, अचानक भी स्नोफॉल हो सकता है, ठंडा पानी हो सकता है। आ, तो जैसे वो अभी हम लोग लास्ट ईयर प्रीति जी वहां घूमने गए थे, इंडिया में एक जगह मुक्तेश्वर करके जैन टेम्पल बना है अपना नया। तो वहाँ एक भालूगढ़ करके वो था, भालूगढ़ करके एक जगह है, तो एकदम क्लीन वाटर है वहाँ, झरना चल रहा है। तो हम लोग यही टाइम पे गए थे, तो वहाँ स्नोफॉल होता है, उस समय नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग जैसे गए और हमने पानी में पैर रखा, तो इतना ठंडा पानी, इतना ठंडा पानी। अच्छा, कहा किसी से कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही आदमी लोग गए और एकदम भागे वहां से, तो मैंने कहा भाई क्यों भागे, आप जाके देखो। तो मैं गया तो मैं भी भागा। तो फिर ये पंडित जी का ये अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान का एग्जाम्पल वहां अप्लाई हो सकता है कि भाई वहां कहा किसी ने कुछ नहीं, हम तो सीधे बस अपना पैंट ऊपर किया और आधे पैर डुबो के वहां डुबोए हमने। जैसे डुबोए तो हमें पता चला कि भाई दिस दिस कोल्ड इज अनबियरेबल, आई मस्ट रन अवे फ्रॉम हियर, नहीं तो मेरे पैर जम जाएंगे, है ना, हाइपोथर्मिया ना हो जाए। तो अपन अपन वहां से आ गए एकदम से। वो अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है। वो अक्षरात्मक भी हो सकता था कि भाई किसी ने हमें वार्निंग दी होती कि सौरभ जी प्लीज डोंट गो देयर, दैट्स वेरी कोल्ड वाटर एंड दैट विल नॉट बी bearable for you because you are from just Garm Pradesh, so you must avoid going there। ये अक्षरात्मक भी हो सकता था, but we just went there and we just experienced by ourselves and instantly we experienced that cold water and we ran away from there। So that is called anaksharatmak shuddh gyan। And in our daily life we just face and feel in many instances। For example, your wife is just cooking food and just मसाले की जो धुआं होता है ना, वो हुआ, और आपको पता है कि इस मसाले की धुएं से मुझे छींक होती है। सो नो वन इज जस्ट स्पीकिंग एनीथिंग इन योर हाउस, इवन योर वाइफ सी डजंट वांट यू दैट आई एम जस्ट डूइंग दिस थिंग एंड यू मस्ट गेट आउट फ्रॉम दिस हाउस बिकॉज यू हैव अ प्रॉब्लम। तो लेकिन उसे जैसे ही धुआं हुआ और उसकी नाक में पहला धुआं गया, वो घर के बाहर भागा। उसे पता है कि अगर एक बार मेरी छींकें चालू हो गई देन इट विल रिमेन फॉर जस्ट 10 मिनट्स और वो मेरी हालत खराब हो जाती है। तो वो भागा। ये अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है। और अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं, रोमांटिक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भाई दो यंग कपल हैं, लड़के लड़की हैं, तो वो भी दे आर नॉट जस्ट मैरिड, मतलब इंडिया की बात करते हैं पर ऐसे कि भी मैरिड नहीं है, वो केवल वो आंखों की भाषा समझते हैं। मतलब उसने आंखों में कह दिया, उसने आंखों में सुन लिया, सो दिस इज कॉल्ड अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है ये भी। मतलब शी और ही दे आर नॉट जस्ट एक्सचेंजिंग द वर्ड,
that they love each other, but वो आंखों आंखों में बात कर लेते हैं। अब वो अपन लोग पुराने जमाने के लोग हैं, अपन को नहीं पता कि भाई आंखों आंखों में बात कैसे की जाती है, लेकिन साहित्यकार बताते हैं, मूवीज बताती हैं कि दे आर कैपेबल टू टॉक बाय देयर आईज। तो वो आंखों आंखों में बात कर लेते हैं वो। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे कि जो अनक्षरात्मक ज्ञान को बताते हैं। आपके पास कोई एग्जाम्पल हो अनक्षरात्मक ज्ञान का तो आप लोग भी बता सकते हैं। ये तो पंडित जी ने एक एग्जाम्पल दिया ठंड का कि भाई ये हितकारी नहीं है तो हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने कहा अन्य भी जान, मतलब आप ऐसे आ, और भी जान लेना कि भाई ऐसे सिमिलर जो एग्जाम्पल हैं ऐसे आपके लाइफ में जो जो आए तो आप जान लेना कि इट इज कॉल्ड अनक्षरात्मक ज्ञान और इट इज कॉल्ड अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान। So it's a very interesting topic, Aksharatmak and Anaksharatmak, if we apply in a life, and if we just closely observe these two principles, Aksharatmak and Anaksharatmak, so we will be aware that कि हम जो चीज जिस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, जिनवाणी में उसको भी प्रॉपरली डिस्क्राइब किया हुआ है कि भाई जो शब्द हैं वो अक्षरात्मक हैं, जो हम फील करते हैं वो अनक्षरात्मक है। फिर यहाँ बात आ रही है कि द वन सेंस इरेशनल बीइंग जीव विदाउट माइंड possesses अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान ओनली। तो अब वो जो बोल नहीं सकते वो जानते हैं कि नहीं जानते, है ना, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में हमेशा आता है। सो देयर आर मेनी कम्युनिटीज इन दिस वर्ल्ड, दे कंसीडर दैट ह्यूमंस आर ओनली जीव, दे आर प्राणी, बट एक्सेप्ट ह्यूमन दे आर नॉट जीव। तो कुछ कंट्रीज ऐसा मानते हैं कि भाई जैसे सी फूड बोलते हैं लोग, तो सी फूड क्या बोलते हैं, इनका ऐसा मानना है कि भाई ये तो सही है, तो कोई मांसाहार की कैटेगरी में नहीं आता है। कोई कहता है साहब चिड़िया को खाना मांसाहार की कैटेगरी में नहीं आता है। तो वो उनका कॉमन एक तर्क क्या होता है कि दे वो उनको तो कोई फील होता ही नहीं ना, कोई चीजें बोल नहीं सकते वो, तो यहाँ कह रहे नहीं नहीं भैया सुनो, वो उनको अक्षरात्मक भी हो सकता है अक्षरात्मक भी हो सकता है। मोस्टली हमें देखने में ये आता है कि उनको अक्षरात्मक होता है, लेकिन यहाँ कह रहे वन सेंस जो एक इंद्रिय जीव है ना, वो तो उसे अनक्षरात्मक ही होता है कंपल्सरीली। ओनली रेशनल बीइंग possesses both type of rational being possesses both type of Shrut Gyan. So this Shrut Gyan is thus dependent even on Mati Gyan, which itself is dependent in many ways, and it is dependent on various other factors also. Hence, it is to be known as extremely dependent. तो कह रहे हैं कि एक इंद्रिय आदि असंगी जीवों को तो अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान ही होगा, और जो संगी पंचेंद्रिय हैं उनको दोनों हो सकता है। तो हम लोग संगी पंचेंद्रिय हैं, त्रियंच संगी पंचेंद्रिय हैं, नारकी हैं, देव हैं। तो इस तरह से ये जो शुद्ध ज्ञान है सो पराधीन है, मति ज्ञान के अधीन है, और अन्य कारणों के भी अधीन है, इसलिए महापराधीन जानना। हम लोगों ने जब अभी स्टार्ट किया था मति शुद्ध ज्ञान 2-3 अपने सेशन पहले, तो हमने देखा था कि पंडित जी यहाँ ये बताने वाले हैं कि मति और शुद्ध ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। तो पराधीन प्रवृत्ति इट मीन्स कि इसमें ना इंद्रियां और मन का हमें साथ चाहिए। विदाउट इंद्रिय मन वी कैन नॉट नो इन दिस जस्ट कर्म अवस्था, इन दिस संसार। विदाउट इंद्रिय मन वी विल नॉट नो एनीथिंग एवर। आंख बंद होने पे दिखाई नहीं देता, कान बंद होने पे सुनाई नहीं देता, नाक बंद होने पर सूंघ नहीं सकते, कोई बीमारी हो जाए जीव है तो हमें कोई स्वाद नहीं आता। तो आत्मा की पावर वैसी है, लेकिन फिर भी हमें इन इंद्रियों के माध्यम से जानना पड़ता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये यही अवस्था है। पंडित जी तो ये बोल रहे हैं यही अवस्था है भैया, मति शुद्ध ज्ञान तो महापराधीन है। तो वो महापराधीन है डजंट मीन कि आप इनको छोड़ दो, छोड़ सकते हो, आप छोड़ नहीं सकते। वो जस्ट एक डिस्कस कर रहे हैं आपसे कि मति शुद्ध ज्ञान जो है ना वो पराधीन है, dependent on the various other factors, and it is known to be the extremely dependent। extremely dependent, तो extremely dependent it doesn't mean कि हमें तो सौरभ जी अब तो हम बस इंद्रियों से छुटकारा पाके रहेंगे, हम one day will come when I will be completely free from this all five senses and man and I will be in संसार। तो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। if you are free from five senses and man, and that stage will be called सिद्ध पर्याय। तो सिद्ध पर्याय में पहुंचने के बाद तो ऐसी कोई बात होती नहीं है। बट अगर इफ यू आर जस्ट ड्वेलिंग इन दिस वर्ल्ड एंड यू आर हैविंग फाइव सेंसेस इन वन मन, तो वो कहते हैं वो पराधीन है, मतलब आप उनके बिना नहीं जान सकते। इवन यहाँ तक कहाँ तक कहें कि जैसे आत्मा को सुख प्राप्त करना है,
मैं आत्मानुभूति के सुख की प्राप्ति नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इंद्रियों के द्वारा जो सुख प्राप्त करना है। तो कहते हैं वो बहिरंग का जो सुख आपको प्राप्त करना है ना, उसके लिए भी आपको इंद्रियों का प्रयोग करना पड़ेगा। इंद्रियों के प्रयोग के बिना आपको बहिरंग का सुख नहीं मिल सकता। वो एक अलग बात है कि वो क्षणिक सुख है, दैट इज नॉट परमानेंट, दैट इज टेम्परेरी। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि वो इंद्रियों और मन की पराधीन प्रवृत्ति है, आप ये जानिए। बस जानना है ना, कोई इंद्रियों को हमें हानि नहीं पहुंचानी है। वी मस्ट नो जस्ट, वी मस्ट नॉट क्लोज आवर आईज परमानेंटली, हमें आंखों को बंद नहीं करना, कान नहीं करना, नाक नहीं करना, हमें सब हमारे पास है और आपके चाहने से कुछ होने वाला है नहीं। सो पंडित जी जस्ट ही जस्ट सेइंग इन जनरल दैट दिस इज मति एंड श्रुत ज्ञान, और ये महापराधीन प्रवृत्ति है। और उन्होंने पहले ही कहा था कि ये परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान मतलब जो किसी के माध्यम से जाना जाए, जो किसी के निमित्त से जाना जाए, that is called Paroksh Gyan. So we can just end our Mati and Sudgyan discussion over here. If you are having any question regarding Mati and Sudgyan, then you can put over here. Otherwise, we are going to start our Avadhi, Manapari and Keval Gyan. So as we just discussed in previous session that there are two categories of Gyan. One Pratyaksh and one Paroksh, second Pratyaksh. So Mati and Shud Gyan, these are called Paroksh Gyan because with the help of Indriya and Man, they just do their work. And Avadhi Gyan, Manapari and Keval Gyan. So these are called Pratyaksh Gyan. Pratyaksh, it means आत्मा सीधे इनसे जानता है, इसमें इंद्रिय मन की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो एक डिस्कशन का पॉइंट अलग रहेगा कि अवधि और मनःपर्य ज्ञान जो हो सकता है वो उनको ही हो सकता है जिनको पांच इंद्रिय हो। ठीक है ना। और केवल ज्ञान भी उनको ही होगा जिनको पांच इंद्रिय हो, सिद्ध बनने के बाद इंद्रिय अतीत हो जाते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ ये कह रहे हैं कि हमारी आत्मा का जो ज्ञान है वो दो प्रकार से होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट ज्ञान इज कॉल्ड मति एंड शुद्ध ज्ञान, एंड डायरेक्ट ज्ञान इज कॉल्ड अवधि मनःपर्य एंड केवल ज्ञान. So I think Mati and Sudgyan is very easy to understand, because we are very familiar with Mati and Sudgyan. But when we talk about Avadhi and Manapari and Keval Gyan, so it may be the subject of just unrealization, unrealistic. We will not believe that how is it possible that even a person who can just know a past worth, coming words, coming time, not only one thing of the previous past time, but also the many our words, many bhav it is able to know. इसी तरह से मना पर्य ज्ञान के साथ, how is it possible that anyone can know the feeling of any one's मन के में स्थित चीजों को जानने वाला ज्ञान मना पर्य ज्ञान कहलाता है। और केवल ज्ञान में तो है ही कि संसार के सभी द्रव्य उसमें झलकते हैं, दैट इज कॉल्ड केवल ज्ञान. So Mati, to believe on Mati and Sudgyan is very easy, but if we just incorporate Avadhi Gyan, Manapari Gyan with just on the level of belief, I think it would be difficult for a common person that Avadhi Gyan type of thing or Gyan is available. Manapari or Keval Gyan, like just super knowledge, super power is available. अब किसको होता है किसको नहीं होता है वो एक अलग चर्चा है कि मन पर्यो केवल ज्ञान तो केवल ज्ञानियों को ही होता है। अवधि ज्ञान जो है वो तो नारकियों को भी होता है, देवों को भी होता है ना। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस ऑन अवधि ज्ञान, मति मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो तत्व सूत्र के माध्यम से हम थोड़ा सा इसको डिटेल में लेंगे कि किस तरह से अवधि ज्ञान मन पर्याय और केवल ज्ञान की का स्वभाव होता है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अवधि ज्ञान कहाँ तक का जान सकता है, मना पर्याय ज्ञान कैसे जान सकता है, केवल ज्ञान का हम लोगों ने समझ नहीं है कि कैसे जान सकता है, जानते ही है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जस्ट वी विल डिस्कस ऑन अवधि मना पर्याय केवल ज्ञान। अभी हम लोग क्लास समाप्त करते हैं। जय जी सौरभ जी, बहुत अच्छा क्लास रहा। और चिन्मय स्तुति कर लेते हैं। अच्छा प्रिय जी, मैं एक ना अभी मेरे पास काफी सारे यूएस के कॉन्टेक्ट्स हैं अभी, तो मैं ना सबको अपनी क्लास का एक जनरल जो मैसेज अपना है ना वो डाल रहा हूँ मैं सबको। तो ओके ओके। आप लोगों की जो पहचान क्योंकि हमारी क्लास जुड़ी रही है, चल रही है। अभी हाँ मैं पुणे गया था तो वहाँ कुछ लोग थे, उन्होंने अपने बच्चों को डाला मैसेज ये। ठीक ठीक। तो मेरे पास करीब 200 कॉन्टेक्ट होंगे यूएस के। हाँ, 150 100 150 होंगे।
तो मैं सबको जस्ट एक जनरल मैसेज डाल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने जुड़ेंगे कितने नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, कोई बात आप लोग भी इसको भरत जी, अपने लास्ट ग्रुप्स में टाइम जब डालिए आपने सब लोग। थोड़ी दिए थे ना, वो भी मैंने मतलब उनको फॉरवर्ड किया था, ताकि अगेन उनको मतलब इन्फॉर्मेशन तो थी, मतलब वो जुड़े कि नहीं पता नहीं था, लेकिन ज्वाइन उनको इन्फॉर्मेशन भेजी थी। तो इस बार भी आप भेज देना, फिर कांटेक्ट करेंगे तो हम उनको बोल देंगे, मतलब टाइम नहीं कोई बात नहीं, मैं तो कांटेक्ट करता जाता हूँ, क्योंकि अपन लोग अपने 8-10 आईडीज हैं, अपन लोग तो रेगुलर आते ही हैं, बहुत बढ़िया बात है। एक वो करेक्ट। रहता है कि अपन डालते जाओ, कोई ना कोई जुड़े तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है ना। हाँ चलिए सर, चलो गुड। जो हम क्लास लोग, होती रहती है, दोनों दोनों की सब्जेक्ट्स की होती है, मतलब हाँ दोनों। क्लास तो हमारी हो ही रही ना, टॉपिक अच्छे चल रहे हैं, मतलब टॉपिक अच्छे चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, हम डिस्कस करते हैं चीजों को, समझते हैं आपस में हम लोग। और लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है कि भाई इफ यू जस्ट एनीवन जस्ट इज विलिंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इन इंग्लिश देन इट इज ओके। तो वो चल रहा है तो बढ़िया है। चलिए हम लोग अभी निर्वाणी स्तुति लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जनवानी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है।